I think last topic that we have done is nothing but stochastic gradient descent, isn't it? Yes. Okay. So the last topic of your ANN, artificial neural network, is left with backpropagation. एक मिनट हाँ. सो आई थिंक ANN में जो अपना स्टार्टिंग के टॉपिक से दैट इज नथिंग बट द न्यूरॉन, द एक्टिवेशन फंक्शन, हाउ डू न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, हाउ डू न्यूरल नेटवर्क लर्न, देन ग्रेडियंट डिसेंट, देन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट. और अभी हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज बैक प्रोपगेशन. So we'll start with the back propagation. It is very much easy. That part we have already covered. Okay. So that part we have already covered, but I'll just revise it for you. जैसे मैंने बोला था कि we have various input values. Each input value has got its own weight. Then it has been added up. Every input has been multiplied with its own weight, and it has been added up. जितने भी inputs रहेंगे, जितना भी weight रहेगा, उनका multiplication add up होगा, and it has been produced by the neuron. And then activation function के through it is going to pass so that it would accurate the output value. Okay, then last में जब we are going to get predicted output value, it is going to check with your actual value with the help of the cost function. It is nothing but prediction error. आपका कॉस्ट फंक्शन जब नील हो जाएगा, मतलब आपका y और y डैश, मतलब आपका predicted output value and actual value is going to be matched. Okay, if it is not, then what we'll do, we'll again back propagate. We are going to adjust the weights, and then again we are going to calculate the weighted sum, and then again we are going to predict the output value, then again we are going to match it with the actual value, then again we are going to calculate cost function. This is going to iterate until and unless we are going to match up with our predicted output value with the actual value. So this is what the scenario. मतलब जैसे ही हम लोग को एक्चुअल वैल्यू अपने प्रेडिक्टेड वैल्यू के साथ मैच नहीं होता, हाँ हम लोग क्या करेंगे, फिर से वेट एडजस्ट करेंगे. सो दैट इज व्हाट द बैक प्रोपोगेशन. सो दैट इज व्हाट द बैक प्रोपोगेशन. ओके, तो मतलब इटरेशन होना, बैक प्रोपोगेट फिर से हम लोग पीछे के स्टेप में जाना, दैट इज व्हाट द बैक प्रोपोगेशन. सो आई होप द आइडिया ऑफ बैक प्रोपोगेशन हैज बीन क्लियर टू यू. Yes, back propagation मतलब क्या? When you see that your predicted output value is not going to match with your actual value, again you are going to back propagate. मतलब again आप क्या करोगे, फिर से पीछे जाके weight adjust करोगे, then that weights has been applied to your input values. Again weighted sum calculate होगा, again आप predicted output value calculate करोगे. This is going to be happen until and unless your predicted output value is going to match with your actual value. Okay, so that is what your back propagation, and it is one of the type of your artificial neural network. जो हमने बोला था ना, feedback, feed forward. Feed forward में क्या होता है, it is unidirectional, it is always going to go in a forward direction. But in feedback में क्या होता है, we are always going to iterate the things, मतलब हम लोग loop में जाएंगे. So that is what the back propagation. Yes, so I hope back propagation का आइडिया सबको क्लियर है. Yes, ma'am. Okay, fine. So just do one thing. Just wait. आपको क्या करना है ना? Wait 1 second. Okay. तो आपको ये डायग्राम तो नोट्स में है. You have already this diagram in your notes for your understanding purpose. Do one thing. This is the simplest one to understand back propagation diagram. Okay. So just draw this particular diagram. Given heading back propagation and draw this diagram.
तो यहाँ पे क्या है, इनपुट लेयर है, इनपुट लेयर में क्या होता है, वेट्स वेट्स उनके पास एड अप होके हिडन लेयर में प्रोसेसिंग के लिए जाता है, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट, and then if your output value is not going to match with your actual value, again वो back propagate होगा. Okay, so this is feed forward, this is back propagation, this is feed forward, again back propagation. तो जब अपना रिवर्स जाता है मतलब it is back propagation, और जब अपना एक ही डायरेक्शन में जा रहा है मतलब it is a feed forward. Okay, so just write draw this diagram and give one heading back propagation, और वो दूसरा डायग्राम तो आपके नोट्स में है for your understanding purpose. Okay, so just draw this diagram. Done. Is it done? No, ma'am. Done, ma'am. Okay, fine. This is where your artificial neural network, मतलब यूनिट वन यूनिट थ्री में ना एक पार्ट है आपका, मतलब देयर आर टू पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. जैसे मैंने सिलेबस आपको फॉरवर्ड किया है, आई गेस मेरे आपके पास सिलेबस कॉपी रहेगा ना? you do you all have a syllabus copy? Yes, ma'am. Okay, fine. So you just go through with the unit 3. Unit 3 में डीप लर्निंग का स्टार्ट हुआ है, और यूनिट 3 में यू हैव ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. तो उसमें से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है. और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इट इज नथिंग बट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू योर स्टार्टअप ऑफ योर न्यूरल डीप लर्निंग. ओके, सो इससे क्या होता है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में ना आपको एक आइडिया मिलता है कि आपका डीप लर्निंग का स्टार्टअप कहाँ से, मतलब इट इज ओपनिंग द वे टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द सब्जेक्ट ऑफ डीप लर्निंग. ओके, तो अभी नेक्स्ट अपना रहेगा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. सो उसमें क्या है, दैट विल टीच यू व्हेन वी स्टार्ट विथ. ओके, सो जस्ट लेट मी क्लोज दिस और राइट डाउन one or two sentences of back propagation. Write down back propagation. Back propagation is the essence of back propagation is the essence of back propagation is an essence of neural net training. Is the essence of neural net training. It is the method of fine tuning. It is the method of fine tuning. It is the method of fine tuning. Fine tuning in bracket adjusting. Fine tuning मतलब adjusting
It is the method of fine tuning in bracket adjusting the weights of a neural net, the weights of a neural net, the weights of a neural net based on the error rate, based on the error rate, based on the error rate obtained, based on the error rate obtained in the previous epoch, in the previous epoch. Epoch matlab iteration, huh? Epoch is the one word we are going to use for iteration in deep learning. The weights of a neural net based on the error rate obtained in the previous epoch, in bracket iteration, iteration, proper tuning of weights, proper tuning of weights allows you to, proper tuning of weights allows you to, proper tuning of weights allows you to reduce, reduce error rates, proper tuning of weights allows you to reduce error rates, to reduce error rates, to reduce error rates, and to match, and to match, and to match predicted output value, and to match predicted output value to the actual value, to the actual output value, predicted output value with the actual output value. यहाँ पे देखो नोट्स में भी मैंने दिया है, मतलब दिस इज माय ओन लैंग्वेज, नोट्स में भी आपके पास है तो यू कैन चूज वॉट एवर यू वांट, बट द थिंग इज यू नीड टू क्लियर द लॉजिक बिहाइंड इट. ओके, सो आई थिंक यहाँ तक अपना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के सारे टॉपिक्स खत्म हुए हैं. देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. यहाँ पे देखो but last point I wanted to cover it out. लास्ट में देखो अ स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग गाइड फॉर न्यूरल नेटवर्क. मतलब अब तक हम लोग ने जितना देखा, मतलब फ्रॉम न्यूरॉन से लेके ब्रैक प्रोपोगेशन तक, इट इज वन स्टेप टू डिजाइन योर सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, टू बिल्ड योर सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. दिस आर द 7 स्टेप. फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली इनिशियलाइज द वेट्स टू स्मॉलर नंबर्स क्लोज टू 0. मतलब मैंने जैसे बोला कि अपने पास बहुत सारे इनपुट वैल्यूज रहते हैं, तो हम लोग को हर एक के लिए वेट्स इनिशियलाइज करना पड़ता है, एंड वी कैन रैंडमली इनिशियलाइज इट, ओके, बट नॉट 0. देन इनपुट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वन फीचर पर इनपुट नोड. जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे इनपुट ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, हर एक के साथ वेट्स अप्लाई रहेगा. देन फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूरॉन्स आर एक्टिवेटेड एंड द आउटपुट वैल्यू इज प्रोड्यूस्ड. मतलब इनपुट वैल्यूज हर एक के साथ वेट अप्लाई होगा, वेटेड सम कैलकुलेट होगा, एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास होगा. Then we are going to generate our output value. Then compare output value to the actual value, measure the difference between the two, the generated error मतलब cost function. From right to left, the generated error is back propagated and the weights adjusted accordingly. The learning rate of the new network is dependent on how much you adjust the weight. मतलब जैसे मैंने बोला बैक प्रोपोगेशन का आपको वेट्स क्यों एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपका आउटपुट वैल्यू जो एक्चुअल रहता है इट इज नॉट गोइंग टू मैच विद योर प्रेडिक्टेड वन. तो आप क्या करोगे, वेट फिर से एडजस्ट करोगे, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लर्निंग ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क. तो जितनी बार आप वेट एडजस्ट करोगे ना, उतनी बार आपका न्यूरल नेटवर्क ना लर्न होता है. ओके, देन रिपीट स्टेप 1 to 5 and either adjust the weights after each observation. That is reinforcement learning. So it is one kind of a reinforcement learning. आप क्या करते हो reinforcement learning में, you are going to observe the environment and accordingly you are going to act upon it based on the reward, okay, or after a batch of observation, okay. तो जैसे मैंने बोला कि batch observation मतलब आपका ये gradient descent, और single observation का updation मतलब आपका stochastic gradient descent, okay. So when the whole training set passes through the neural network, makes an epoch, redo more epoch. मतलब अब तक मैंने जो भी बोला था ना, ये सारे स्टेप्स में है आपके.
तो अगर आपको किसी स्टेप में डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, जस्ट गो थ्रू दिस। और जिसने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के, उसको ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा ये। सो दिस इज प्योर टेक्निकल लैंग्वेज, और मैंने हर एक स्टेप और हर एक टॉपिक क्लियर किया है। जिसने अटेंड किया है उसको इजीली समझेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अंडरस्टैंड बाय एनी वे। So I'll give you 5 minutes, just go through it. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, we'll start with the convolutional neural network. These are the steps, these are the whole step। मतलब अगर हम लोग कोई भी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं या फिर कोई भी न्यूरल नेटवर्क को लर्न करने के लिए प्रोसेस करते हैं, तो these are the steps, 1 to 7 steps we need to follow. Even if we are going to write down a simple program for building a artificial neural network, then these are the steps we need to follow. So this is nothing but a short algorithm that you need to follow while building a simple artificial neural network in your deep learning. और if possible, if मतलब अगर हम लोग को होगा पॉसिबल तो हम लोग प्रैक्टिकल भी इस पे करेंगे, प्रोवाइडेड कि वी नीड टू हैव दैट मच सपोर्टेड सॉफ्टवेयर वी हैव। फॉर दिस वी नीड एनाकोंडा स्पाइडर। सो अगर हर एक का पीसी और मेरा भी अगर पॉसिबल है उतना इंस्टॉलेशन ये करने का, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कवर दिस प्रैक्टिकल्स। Otherwise the code is with me. I'll just explain it to you, and if you all have that kind of a configuration at your home, you can easily execute and you can easily get the answer. So we'll just decide how exactly the things will be go ahead. और उसके पहले हम लोग को थियोरी क्लियर करना पड़ेगा, और उसके पहले हम लोग को मशीन लर्निंग के प्रैक्टिकल्स करने हैं, देन वी स्विच ऑन दिस। यस एवरीवन, किसी को कुछ डाउट है क्या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, या किसी को कुछ समझा ही नहीं, या आधा समझा है या पूरा समझा है? कुछ तो रिस्पॉन्स दो चैट में। समझा मैम। ओके, समझा। बाकी लोग कोई सो रहे हो क्या? बाकी लोग सोना मत। Yes, ma'am. टोटल 28 स्टूडेंट्स, और रिप्लाई मेरे को सिर्फ 2-3 जन का ही आता है, यही लोग अलाइव रहते, बाकी लोग क्या क्या सोते रहते क्या? ओके, खुशबू का रिप्लाई आया, बाकी कितने सारे जन है? लेट मी सी फर्स्ट। ओके फाइन। Okay, fine. So we'll switch to the next topic. Okay. So next topic that we are going to cover in deep learning, that is convolutional neural network, and it is very much important, and as well as it is very much easy to understand. तो ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क अगर आप मतलब पढ़ने जाओगे तो इट सीम्स डिफिकल्ट, बट मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा डिफिकल्ट मतलब बहुत कम लेवल पे, मतलब डिफिकल्टी लेवल कम करने का ट्राई किया है। इट इज़ वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पे से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। सो इट इज़ नथिंग बट पिलर ऑफ योर डीप लर्निंग। तो इसमें हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन, रेलू लेयर, पूलिंग, flattening, full connection, and what all these are that we are going to see step by step. देखो यहाँ पे रेलू लेयर दिख रहा है आपको, तो रेलू लेयर मतलब एक्टिवेशन फंक्शन में देखो आपको एक रेलू फंक्शन था, याद आ रहा है क्या? एक्टिवेशन में Yes, आपको ma'am. हाँ, तो
मतलब ये टर्म्स यूज होने वाले हैं, तो यू नीड टू क्लियर द मतलब जो पीछे जो थ्योरी हुआ था वो आपको ध्यान में रखना है, एटलीस्ट की पॉइंट्स तो याद रखो। फाइन। सो हाँ, सो व्हाट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क? तो इट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ अ ब्रेन वर्किंग रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने बोला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमने क्या देखा कि हाउ एग्जैक्टली न्यूरॉन्स आर गोइंग टू वर्क इट आउट, हाउ एग्जैक्टली न्यूरॉन्स आर गोइंग टू प्रोसेस इट आउट, हाउ एग्जैक्टली इट इज अपना न्यूरल नेटवर्क लर्न कैसे होता है बाय एडजस्टिंग वेट्स एंड ऑल दैट थिंग्स दैट वी हैव सीन इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अभी उसका एक स्टेप अहेड देखते हैं। सिर्फ हम लोग ब्रेन से प्रोसेसिंग करने का या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना इतना ही काम नहीं रहता ब्रेन का। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ही आपको एक डायग्राम बताया था कि अगर एक स्टेप अहेड जाए हम लोग, तो अगर मैंने बोला कि व्हाट दिस डायग्राम इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू, तो व्हाट यू पीपल से चैट में मेरे को बोलना है व्हाट यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट बाय दिस डायग्राम, मतलब आपको क्या दिख रहा एक बंदी मैम, है? हाँ, एक बुड्ढी और एक बंदी। हाँ, सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है Yes, क्या? ma'am. ओके। तो मतलब क्या, दिस इज ब्रेन विजुअलाइजेशन। देखो मतलब एक तो ओल्ड लेडी है और ये एक यंग लेडी है दैट इज सीइंग टू फार। तो दिस इज ब्रेन विजुअलाइजेशन। तो अपना ब्रेन प्रेडिक्ट कर सकता है, बट हाउ एग्जैक्टली मशीन इज गोइंग टू प्रेडिक्ट दिस? यस, सो दैट इज वन क्वेश्चन। यस, I'll just show you another diagram। जो यहाँ पे मैंने बोला था it could be a duck or it could be a rabbit। okay, so that is next thing। ओके, तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे और एक एग्जांपल का सेट है जिसमें अगर मैंने बोला आप नीचे वाले बॉक्स में मत देखो, मैंने डायरेक्टली आपको अगर बोला कि फर्स्ट डायग्राम से देख के आपको क्या पता चलता है, तो यू आर डायरेक्टली मतलब सडनली यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इट इज अ चीता। ओके, तो मशीन लर्निंग जब ये काम करता है तो चीता, उसके बाद लेपर्ड, उसके बाद स्नो लेपर्ड, उसके बाद इजिप्टियन कैट वगैरह, ये सारे मतलब सर्चेस ही देता है, मतलब बट प्रायोरिटी किसको जाता है? चीता को जाता है, बिकॉज ये इमेजेस के मोस्टली लाइटनेस चीता के साथ है। नेक्स्ट अगर मैंने बोला कि नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने बोला कि व्हाट इज दैट इमेजेस लुक लाइक, तो आप क्या बोलोगे? बुलेट ट्रेन। तो कोई बोलेगा पैसेंजर ट्रेन, कोई बोलेगा सबवे ट्रेन, कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो बट उसका जो फीचर्स है इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू लाइक टू बी बुलेट ट्रेन। तो ज्यादा जो सर्च होगा या फिर ज्यादा जो रिजल्ट मिलेगा वो बुलेट ट्रेन पे रहेगा। तो थर्ड वन का भी अगर आपने देखा तो देर आर वेरियस सर्चेस, बट हाँ हैंड ग्लास को ज्यादा सर्च जाएगा, मतलब ज्यादा वेट जाएगा। तो मतलब व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है ना कि वी एज अ ब्रेन वी हैव टू मेनी एंगल्स टू सी अ पर्टिकुलर थिंग, तो बट वी नीड टू मशीन टू मेक दैट, और दैट इज व्हाट द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इज गोइंग टू हैंडल। तो इमेज अगर मैंने बोला कि आपके पास एक इमेज है, आपके पास एक फोटो है मतलब एक लेडी का या फिर बच्चे का, तो इज इट स्माइलिंग और इज ही स्माइलिंग और इज ही सैड? तो ये डिटेक्ट करने के लिए आप एज ए ह्यूमन ब्रेन सडनली आप इमेज देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट इसको मशीन को कैसे समझेगा? मशीन कैसे प्रेडिक्ट करेगा? मशीन कैसे लर्न करेगा? so that is what the convolutional neural network, and that part we are going to see in that। okay? so यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल नहीं बोल सकती मैं, बट थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ये है, मतलब प्रेजेंटेशंस है। सो आई होप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का आइडिया आया आपको। यस मैम। ओके, ओके, सो गिवन हेडिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूनिट 3 का ही है टॉपिक, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। एंड राइट डाउन स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। आपको सिर्फ हेडिंग देना है। स्टेप्स कौन से कवर करने? द प्लान ऑफ अटैक इज नथिंग बट फर्स्ट वन, व्हाट इज CNN, व्हाट इज CNN, व्हाट इज CNN, एंड देन स्टेप वन लिखो। व्हाट इज CNN में हम लोग कवर करने वाले, मतलब दिस इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट का, तो उसमें स्टेप वन है आपका कन्वोल्यूशन ऑपरेशन,
देन स्टेप 1 का भी ही रेलू लेयर जैसे है वैसे लिखो, स्क्रीन पे दिख रहा है, बट सिर्फ नाम ही हेडिंग दे दो, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना आपको. स्टेप 1 कन्वोल्यूशन ऑपरेशन. स्टेप 1 बी इज योर रेलू लेयर. Step 2 is your pooling. Step 2 is your pooling. Step 2 is your pooling. Then step 3 is your flattening. Step 3 is your flattening. Step 4 is your full connection. And the last में we are going to summarize all these steps. Okay? तो एक summary kind of a diagram रहेगा जिसमें आपने जो भी किया है वो सारा मतलब collectively summarize होगा, जैसे हमने back propagation में देखा. Okay? So when we are going to see convolutional neural network में ही ये सारे स्टेप्स आते हैं. मतलब अगर आप बोलोगे कि डिफाइन करो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी स्टेप्स. तो पहले कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होगा, देन रेलू लेयर, उसके बाद आता है पूलिंग, एंड देन उसके मतलब एक स्टेप के आगे दूसरा स्टेप अटैच्ड है. तो अगर आपने एक भी स्टेप मिस आउट किया ना तो आपको आगे वाला कुछ नहीं समझेगा. ओके, सो दैट इज व्हाट द थिंग ऑफ अ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. So just given heading definition of CNN. Definition of CNN. Write down a CNN. A CNN is a type of ANN. A CNN is a type of ANN used in image recognition. A CNN is a type of ANN used in image recognition and processing. A CNN is a type of ANN used in image recognition and processing that is specially designed to process pixel data. That is specially designed to process pixel data. CNN are powerful image processing technique. CNNs are powerful image processing technique. तो बेसिकली CNN कहाँ पे यूज होता है? इमेज प्रोसेसिंग में. अगर आपको किसी इमेज से कुछ प्रेडिक्ट करना है, सो इन दैट केस योर CNN इज गोइंग टू प्ले द रोल. ओके, मैम वो रेशमा और नैना वो लोग वेट कर रहे हैं. मेरे को दिख नहीं रहे वो लोग. मैं कब से देख रही हूँ, मेरे को पॉपअप्स आ रहे. मेरे को 27 मेरे को दिख मतलब पॉपअप्स आ रहे, बट आई कुड नॉट मेक देम अलाउड टू इन. ओके फाइन दिखा किया मैंने उनको. Okay. So this is what convolution neural network. It is basically a kind of a image processing. We are going to process a complex kind of a image in that. अभी अगर सपोज आपको अभी के गूगल फोन्स में देखो आता है कि आपने किसी भी सपोज एक चीज है और उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, यू don't have any idea about that, but if you just make a photo of that and you just make a search of that, so it is going to give you a collection of names for that particular thing. So what exactly that the particular is nothing but it has been recognized the name of that particular object. So behind that your convolutional neural network is going to work out. So is this idea clear to all of you? Have you come across this kind of a thing? Is it clear? Yes. यस मैम. हाँ,
तो क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग के पीछे आपका कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क काम करता है, और दीज आर द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो. सो आई जस्ट स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल, मतलब सिंपल कंसेप्ट. Okay, so this is what the working of your CNA. You are going to input an image, and then you are going to get the output label image class. मतलब आपको वो इमेज को क्या नेम करते हैं, मतलब आपने इमेज इनपुट दिया एंड देन आपको आउटपुट में उसका लेबल मिला, मतलब व्हाट एग्जैक्टली द लेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज. तो बीच में कौन काम करता है, आपका कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जैसे मैंने अभी आपको बोला. तो यस, ड्रॉ दिस डायग्राम. डेफिनेशन के नीचे है ना, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है. तो you have an input image, then CNN is going to work on it and it is going to give the label of that particular image. So draw this diagram. This is very much easy part है, बहुत easy है ये और interesting भी है. Done, ma'am. Okay, so CNN is going to label your input image. Then how basically the things happen. यहाँ पे देखो कि we have two types of images. We have a black and white image and we have a colored image. Okay? तो जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं तो हम लोग को पता है कि उसका कलर है तो ब्लैक रहेगा या फिर व्हाइट रहेगा, और कलर में हम लोग को पता है देयर आर एन नंबर ऑफ कलर्स आर गोइंग टू बी यूज. बट हाउ एग्जैक्टली मशीन इज गोइंग टू प्रेडिक्ट, जैसे कि हम लोग को पता है कि सपोज दिस इज 2x2 पिक्सल इमेज रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट. जब हम लोग मशीन लेवल पे ट्रांसफॉर्म करेंगे बिट वाइज, तो पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4 को वैल्यू क्या रहेगा, एक मिनट. तो यहाँ पे पिक्सल को वैल्यू रहेगा आइदर 0 और 1, मतलब इट कुड बी 0 फॉर ब्लैक एंड 255 फॉर व्हाइट, इजंट इट? सबको पता है ना? जब आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेज रहेगा 2x2, तो उस जब हम लोग वही मशीन जब हम लोग वो इमेज ब्लैक एंड व्हाइट मशीन लेवल पर ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो either it has got a value of 0 for black and white, 255 for white, 255 for white. But when we have a colored image, then वहाँ पे क्या होगा, RGB वैल्यूज रहेंगे. समझा मैंने क्या बोला? देखो, हाँ मैम. जब हम Yes, लोग ma'am. ब्लैक एंड व्हाइट इमेज करते हैं ना, हम लोग के पास एक ही लेयर रहेगा जिसमें आपका 0 to 255 वैल्यू जाएगा, बट फॉर ओनली ब्लैक एंड व्हाइट. बट जब आपके पास कलर्ड इमेज रहेगा, आपके पास 3 वैल्यूज रहेंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. मशीन में 3 ही वैल्यूज कलर, आप जब कलर फोकस करते हो मशीन इज गोइंग टू प्रेडिक्ट ओनली आरजीबी वैल्यूज. तो आपके पास एक लेयर रहेगा ब्लू का, एक लेयर रहेगा ग्रीन का और एक लेवल रहेगा रेड का. तो ब्लू के लिए 0 to 255, ग्रीन के लिए भी 0 to 255 एंड रेड के लिए भी 0 to 255 इन केस ऑफ अ कलर्ड. बट इन केस ऑफ अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यू हैव अ सिर्फ ब्लैक के लिए वैल्यू रहेगा फ्रॉम 0 to 255. इवन दो आप फॉन्ट में भी देखते हो ना, तो ना देखो एक ऐसे ये रहता है, हम लोग वो कलर को ना 0 to 255 तक लेके जा सकते हैं, मतलब हम लोग डिफरेंट शेड्स दे सकते हैं. तो दैट इज व्हाट द थिंग. तो CNN में क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज रहता है तो ब्लैक की वैल्यू 0 to 255 लेके जाता है, और कलर रहेगा तो RGB की 3 वैल्यूज का लेयर फॉलो करता है. सो दैट इज व्हाट द सिंपल बेसिक थिंग when convolutional is going to start its step. Okay, so just give one heading, how convolutional neural network, how CNN scan image.